guys, welcome back to my YouTube channel. This is Mista. If you don't know, let me reintroduce myself. I make content about my life in Korea. I'm a master's student studying at Chungang University. I'm currently in my third year of master's program. I'm majoring in global business and finance, and I would not call myself a finance girl because I know nothing about it. I'm so sorry to disappoint you, but that's the fact. Okay? बाकी किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो डेफिनेटली पूछ लेना फाइनेंस के बारे में छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे मेरे फाइनेंस की खुद के बैंड बजी पड़ी है. Okay, so yes, guys, please ignore how I'm looking right now. I have no interest in, कब करने का कुछ करने का. वैसे मैंने किया है थोड़ा सा, बट फिलहाल मुझे नहीं करना है कुछ बिकॉज आई एम सो टायर्ड. मैं पिछले एक हफ्ते से, नॉट एक हफ्ता बट आई वुड से लाइक 23rd से लेके 29th, yes, I have been doing back and forth from Jeonju to Seoul, Seoul to Jeonju, Jeonju to Seoul. So अब मेरे अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो गई है एंड आई हैव नो स्ट्रेंथ कि मैं उठ के मेकअप करूँ या कुछ करूँ. सो इसके लिए मैं जस्ट अभी ऐसी नॉर्मल अपने पजामाज में बैठी हूँ एंड आई एम गोना मेक अ वीडियो फॉर यू एंड आई होप आई लुक गुड. ओके. ऑल्सो गाइज आई वांट शेयर समथिंग विद यू गाइज बिकॉज आप लोग के सपोर्ट की वजह से आई एम एबल टू डू व्हाट आई एम एबल टू डू. सो first thing is guys, I want to do something with my YouTube channel. I get DMs from people saying कि मैं कोरिया आने वाली हूँ, तो क्या आप मुझे कोरिया घुमा सकते हो, क्या आप मुझे मिल सकते हो. आई मीन मुझे मिलना बहुत, आई मीन आई वॉज एन इंट्रोवर्ट बिफोर बट आई एम नाउ अ एक्सट्रोवर्ट. सो मेरा MBTI भी ESTJ है. ओके. सो आई लव मीटिंग न्यू पीपल. So what I'm planning is that I have been traveling to Jeonju, so make travel vlogs and how to travel to any countryside of South Korea. सारी information provide करना just like a travel vlogger does, but I'm not that good at it. ये थी पहली चीज़ कि ट्रैवलिंग के बारे में बताओ. दूसरी चीज़, you know that I am छोटी सी बहुत छोटी सी beauty influencer. So I also want to start reviewing beauty products because recently, I mean, like, I don't know what exactly happened, what product I used, skincare, and I got acne all over my face. And another brand helped me clear my skin. So I want to start reviewing products as well. These are something two different things I'm planning to do with my YouTube channel. Also keep providing you guys with informational videos because आप लोगों को काफ़ी पसंद आती है मेरी videos. So I hope you guys such so. So I'm gonna keep doing that along with these two things that I'm gonna start with. And I hope you like that as well. And I hope you support me. Guys, एक साल है मेरे पास. I have decided कि मुझे एक साल में बहुत कुछ achieve करना है. Please help me out. I need your support. I honestly do. And I mean it. So, okay, without further ado, let's get the video started. Today's video is going to be about how to apply to a master's program in Korea. And along with like the detailed video, I will also share about my experience and how I applied. Okay, so the first thing is you need to do is choose your university and the program which you want to apply for. Okay, so मैं चुंगांग यूनिवर्सिटी में हूँ और मैंने इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया है. मैं बैक स्टोरी जाते हैं तो मैं अच्छे से समझा पाऊँगी आप लोगों को. एंड इफ़ दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग, आई कट इट इनटू 2 वीडियोस. या तो एक ही वीडियो में बना दूँगी, जो भी होगा आई डिसाइड इट लेटर, बट आई नीड टू गो टू द बैक स्टोरी. सो कम विद मी. ओके, सो मैं कोरिया आई थी 2022 में, सितंबर 2022, सितंबर 1st 2022 को मैं कोरिया में लैंड हुई थी. एंड दैट वाज द वर्स्ट डे, आई मीन लाइक इन माई लाइफ, एंड दैट वाज द बेस्ट डे एज वेल इन माई लाइफ. चीज़ें आई मीन वो मेरी गलती की वजह से वर्स्ट डे था एंड मेरे डिसीजन की वजह से ही वो बेस्ट डे भी था मेरे लाइफ का. बट इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ, सो लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट. हम मेन टॉपिक पे आते हैं. तो मैं जब आई थी तो मैं कोरियन लैंग्वेज पे आई थी. एंड आई वुड से कि इफ़ यू वांट कम टू कोरिया, द ईजीएस्ट वे टू बी हियर इज़ टू अप्लाई टू अ लैंग्वेज प्रोग्राम. एंड आई नो कि आप बोलते होंगे कि GKS भी तो है दीदी. GKS भी है, बट व्हाट आर योर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन GKS? एग्जैक्टली राइट. मेरा लक नहीं था इतना अच्छा. मैंने भी अप्लाई किया था
like any other, you know, fan who wants to come to Korea. मैंने भी अप्लाई किया था, बट आई वॉजन दैट लकी इनफ टू गेट सेलेक्टेड, एंड दैट्स समथिंग आई डोंट वांट टू रियली टॉक अबाउट बिकॉज इट्स इन द पास्ट नाउ एंड डजंट रियली मैटर टू मी एनी मोर. सो उसके बारे में मैं बात करना पसंद नहीं करती. आई मीन लाइक जिस रास्ते मुझे जाना नहीं, उस रास्ते का मैं पता नहीं पूछती. सिंपल है मेरा. तो जो हुआ सो हुआ, एंड आई हैव सो मेनी थिंग्स टू. आई मीन लाइक आई हैव फ्रेंड्स हु अप्लाइड एंड डिडंट गेट सेलेक्टेड. आई मीन लाइक इंटरव्यू राउंड होने के तक भी पहुंच गए थे वो बेचारे, एंड दे डिडंट गेट सेलेक्टेड. बट दे आर ऑन E7 वीज़ा और E6 वीज़ा, जॉब वीज़ा पे. So I would just say that everything's work out for you and will work out in your favor. Even if you don't get selected in GKS, just let it be. Try something else. बोलते हैं ना कि भले एक दरवाज़ा बंद हुआ है, दूसरे दरवाजे पे खटखट करके देखो, शायद उसके पीछे तुम्हारा रास्ता हो. ठीक है? So I didn't want to give up. I applied for the language program. I got selected and I applied only for one university. I got selected. So ऐसा नहीं था कि कोरिया मेरे नसीब में नहीं था, बस मैंने गलत दरवाजे पे ठक ठक की थी. वही मेरी गलती थी बस. देन आई डिड कोरियन लैंग्वेज फॉर अ ईयर, बट मेरे दिमाग में मेरा प्लान पहले से था कि आई वांट टू डू मास्टर्स इन कोरिया. मेरा पहले से वही गोल था. सो जब मैं कोरियन की पढ़ाई कर रही थी, अपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर रही थी. सो आई वुड सजेस्ट लाइक व्हेन यू आर कमिंग टू कोरिया, हैव अ प्लान कि तुम्हें क्या करना है in the future. If you want to just come here for a year to experience the Korean culture, Korean life and Korean सीखनी हो, you're most welcome. बट अगर तुम्हें कुछ और सपने हैं, जैसे जॉब करनी है या क्या करना है, सोच के आओ, ऐसे ही मत आ जाओ. बिकॉज यहाँ पे लाइफ इतनी ईजी नहीं है जितनी दिखती है रील्स पे. इवन इफ यू हैव स्कॉलरशिप, इट्स नॉट इनफ. और मैं तो सेल्फ फंडेड स्टूडेंट हूँ. मुझसे पूछो कितनी दिक्कत होती है जब हर 6 महीने तुम्हें वो कितने लाख स्पेंड करने होते हैं. And it's not just about Korea, it's about other countries as well. So if you want to go anywhere in the world, just, you know, have a goal. That's the first thing you want to do for yourself. तो ऐसा हुआ, and like anyone, मैंने भी अप्लाई किया था टॉप यूनिवर्सिटीज़ में. आई मीन लाइक एनीवन, आई वांटेड टू गो टू एनी टॉप यूनिवर्सिटी. जैसे कि सोल, मैं तो सोल से ही लैंग्वेज भी पढ़ी हूँ. सोल, योनसे, कोरिया, फिर चुंगांग, और एक और थी, वो प्रोफेसर के थ्रू थी. सो आई डोंट रिमेंबर. हलिम, इट वॉज हलिम. आई डू रिमेंबर द नेम, सॉरी. मैंने अप्लाई किया था. मैंने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं किया बिकॉज आई हैड ऑलरेडी स्पेंड माई मोर देन 6 लाख. मेरा लिविंग, मेरा एयर फ्लाइट, और क्या नहीं, रेंट, everything. I had paid more than 10 lakhs. So I was like कि अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना. I come from a middle class, but still I'm not that rich कि मैं इतने पैसे उड़ा सकूँ. तो मेरे पहले ही चीज़ें सॉर्टेड थी माइंड में मेरे कि मुझे इतनी ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, इससे ज़्यादा मैं अपना टारगेट नहीं रख सकती. सो अगर तुम देखोगे तो मैंने सोल, कोरिया, योनसे, चुंगांग एंड हलिम. हलिम में मुझे पे नहीं करना पड़ा, बट स्टिल आई हैड टू स्पेंड 40,000 INR रुपीज़. यस, अगर वही मैंने सेव किया होता तो आई वुड हैव बॉट समथिंग एल्स फॉर माई सेल्फ. बट नहीं, मुझे तो मास्टर्स पढ़ना था, तो आई हैड टू स्पेंड 40,000 जस्ट ऑन दी फीस ऑफ एप्लीकेशन. ये एप्लीकेशन फ़ी है गाइस, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की. एंड अब तो शायद वो और इंक्रीज़ हो गई है, आई डोंट नो, बट इट्स मच मोर नाउ. सो बी केयरफुल कि तुम्हें अगर मास्टर्स करना है तो यू हैव टू, यू नो, स्पेंड इतना. तो अप्लाई करने से पहले सोच लेना. ऑल्सो व्हेन आई अप्लाइड, आई वॉज लाइक ये मेरे पास लास्ट चांस है. आई कैन नॉट, यू नो, जस्ट मेस थिंग्स फॉर माई सेल्फ. अगर यहाँ नहीं हुआ तो अब मुझे इंडिया वापस जाना पड़ेगा. सो आई वॉज वेरी केयरफुल विथ चूजिंग द यूनिवर्सिटी एंड द मेजर. सो व्हाट आई डिड वॉज, मैंने एक्सेप्टेंस रेट खुद, आई मीन लाइक खुद का दिमाग लगाया थोड़ा. Sometimes when things are not working out in your favor, you have to, you know, just plan and plot things for yourself to make the things work for you. So that's what I did. मुझे इतना तो समझ आ गया था कि अगर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ तो मुझे इंटरनेशनल कोर्सेज में ज़्यादा एक्सेप्टेंस रेट होगा, मेरा एक्सेप्ट होने का चांसेस ज़्यादा होगा. सो दैट्स व्हाट आई डिड. आई एम मेजरिंग इन इंटरनेशनल स्टडीज़, एंड मैं एक लाइव प्रूफ हूँ कि जो अगर तुम दिमाग लगाओगे थोड़ा तो
हैंड प्लॉटिंग सही होगी. Graduated my bachelor's in commerce, so I was very clear about my, like, what I want to pursue for my masters. और मेरा गोल, लॉन्ग टर्म गोल, आई वुड से कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू हैव माई ओन ब्रांड एंड हैव माई ओन बिजनेस. सो मुझे हमेशा से इसी चीज़ के बारे में पढ़ाई करनी थी. आई वॉज वेरी क्लियर. सो मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया मेरा, एंड देन नाउ आई एम परसुइंग ग्लोबल बिजनेस एंड फाइनेंस. एज आई सेड, डू नॉट आस्क मी अबाउट फाइनेंस बिकॉज मेरे फाइनेंसेस बहुत ख़राब है, बट आई एम गोना मेक अ हैबिट ऑफ मैनेज माई फाइनेंसेस वेल. एंड अगर मेरे फाइनेंसेस अच्छे होते तो ये बड़ी कॉफ़ी नहीं होती मेरे पास अभी फ़िलहाल. मम्मा, सॉरी. Okay, just forget about that. So guys, it's for you to decide what thing you want to major in and what are your interests. उसके बाद आती है कॉलेज की रैंकिंग. सो ऑब्वियसली तुम्हें कौन से कॉलेज में जाना है उसकी रैंकिंग आप चेक करना. देन व्हाट एल्स, लेट मी सर्च. फिर येस, व्हेन आई वाज अप्लाइंग, यहाँ पे इतने ज़्यादा कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जहाँ इंटरनेशनल कोर्सेज है जो ऑफ़र करते हैं. ऑल्सो इफ़ दे ऑफ़र, उनके प्लीज़ आई वुड से करिकुलम पे एक बार नज़र डाल लेना. बिकॉज मैं सोगांग में अप्लाई करने वाली थी एंड दे डिडंट हैड एनीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस. आई मीन दे हैड इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिक्स एंड ये सब था. ये सब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है बिकॉज आई एम समवन हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स. मेरा वो इंटरेस्ट ही नहीं है कभी से. आई एम मोर इंटरेस्टेड इन बिजनेस. सो मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ बिजनेस रिलेटेड पढ़ना है एंड इट मेक्स सेंस फॉर मी. तो प्लीज़ एक बार यूनिवर्सिटी में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसका करिकुलम चेक करना प्लीज़. ऑल्सो मैंने ये कोर्स इसलिए चूज़ किया बिकॉज मेरी सारी पढ़ाई इंग्लिश में है. आई डोंट हैव टू स्टडी अ थिंग इन कोरियन. एक चीज़ मुझे कोरियन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट द पार्ट दैट मुझे कोरियन बोलते ना लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के लिए अलग से पढ़नी पड़ती है. वो मेरा एक सब्जेक्ट है, बट वो भी सिर्फ लेवल 2 तक. सो आई मीन लाइक किसी चीज़ में बुराई नहीं है. मैंने तो 1 साल लैंग्वेज की भी है. सो फॉर मी इट वॉज ईजी पीजी. हर एक में एज आए एंड आई जस्ट मेरा लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी पूरा हो गया एंड मेरा फिर से रिविजन भी हो गया. सो आई टुक इट इन अ गुड वे. आई डिडंट टेक इट एनी रॉन्ग वे. So just check all those things before you apply. Then ट्यूशन फीस, कि कितनी ट्यूशन फ़ी है उस यूनिवर्सिटी की. आई मीन आई वुड से कि सब यूनिवर्सिटी की फ़ीस ऑलमोस्ट सेम है एंड ऑल्सो अभी तो और बढ़ गई होगी. फिर स्कॉलरशिप्स चेक कर लिए कि स्कॉलरशिप मिल रही है नहीं मिल रही है और कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उनका, कि अगर तुम्हें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो जस्ट चेक. ओके, this is the first thing. Choose your university, choose your program. Okay, now second thing, check admission requirements. अब हर यूनिवर्सिटी की हर अलग एडमिशन रिक्वायरमेंट होती है, क्राइटेरिया होता है, बट मोस्टली सबका सेम होता है. बट किसी किसी में कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले तो तुम्हारी बैचलर्स डिग्री चाहिए होगी, तुम्हारी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, वो तुम्हें तुम्हारे कॉलेज से मिल सकती है. एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इट इंक्लूड्स, कि तुमने वो कोर्स में कितने आवर्स दिए हैं. मुझे भी नहीं पता था ये चीज़, ना मुझे किसी ने कभी बताई थी, बट मेरे कॉलेज ने वैसे मुझे बना के दी थी, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ. आई मीन लाइक हाउ मेनी आवर्स यू हैव स्पेंड ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स, कितनी वीक्स, फिर तुम्हारे कितने ग्रेड्स थे, आउट ऑफ व्हाट CGPA या GPA जो भी है सब मेंशन होता है. कब से कब तुम्हारा कोर्स था, कब से कब तुम्हारा वो सेमेस्टर था, एंड एवरीथिंग. सो इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एन इंटरनेशनल कोर्स लाइक मी, you definitely need a IELTS certificate. I also gave IELTS exam here in Korea. मैंने इंडिया में नहीं दिया था and the prices were almost the same as India. तो just in case if you don't give in India, you can still give your IELTS exam here in Korea. But you definitely need a English certificate or a certificate saying
from your university that you completed your graduation in English major, but I would recommend that you get a IELTS exam done, because वो एक extra point होता है and it makes your chances of getting selected much more high. So please get your IELTS exam done before you apply. Then letter of recommendation, yes, either it's from your workplace or from your professors. You need one year, 2 year, 3. I applied for SNU, Yonsei, Eva, Chungang and Halim. Halim में तो professor के through था, so I didn't had to actually give him a letter of recommendation. I don't know, I did give him, I guess. I don't remember it well now. SNU तो मैं reject हुई. Yonsei also I got rejected and I don't care. I mean like मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं रिजेक्ट हुई. I'm so happy in Chungang right now. You guys have no idea. I mean like it's better. I got rejected from SNU. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं रिजेक्ट हो गई. I am not taking it in a wrong way. बट जो हुआ वो मेरे बेहतर के लिए हुआ. मैं सच्ची कह रही हूँ ये चीज़. मैं ईवा में भी सिलेक्ट हुई थी, बट देन आई कंपेयर कि स्कॉलरशिप्स है या अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ ज़्यादा बेटर है. सो आई वेंट फॉर चुंगांग एंड ट्रस्ट मी गाइज, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड इन माई लाइफ. यू कैन सी इट ऑल ओवर माई फेस व्हेन आई टॉक अबाउट चुंगांग. आई एम सो हैप्पी हियर. यहाँ पे प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे हैं. मेरी डीन सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है. ट्रस्ट मी, आई एम नॉट इवन लाइंग. बहुत अच्छे है वो. सो येस, मैंने कंपेयर किया था तो मुझे ईवा इतना, आई मीन लाइक देयर आर इंडियंस इन ईवा एज वेल एंड वो वहाँ पे अच्छी, उनकी लाइफ वहाँ अच्छी होगी. बट मेरा जहाँ लिखा था मैं यहाँ चुंगांग में थी. सो सबके लिए अलग अलग चीज़ वर्क करती है. चुंगांग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी राइट नाउ. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड स्टडी प्लान, मैं ये दो चीज़ के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट आई एम जस्ट गोना टेल यू कि ये दो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना प्लीज़. बिकॉज मैंने ईवा में भी इंटरव्यू दिया था और चुंगांग में भी इंटरव्यू दिया था. ईवा में भी मुझे क्वेश्चन पूछे गए थे कि तुमने क्यों अप्लाई किया, तुम्हारा क्या प्लान है. ये सब बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं मुझे. लेकिन मेरे चुंगांग में जो मैंने मेरे स्टडी प्लान में लिखा था कि तुमने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है और तुम्हारे आगे के प्लान क्या है, कैसे करोगे, क्या करोगे, जो करना है क्या करोगे, उन्होंने मेरा पूरा स्टडी प्लान मुझसे पूछा था. एंड आई हैड एक्चुअली आंसर्ड इट फ्रॉम माई स्टडी प्लान. एंड मेरे इंटरव्यू में ही मैं इतनी श्योर हो गई थी, टच वुड, इतनी श्योर हो गई थी कि आई एम गोना बी सिलेक्टेड हियर बिकॉज माई इंटरव्यू वॉज लाइक इट वेंट सो गुड. I still have the memory back in my head कि वो दिन कैसा था. I was so nervous but everything worked out in my favor. Okay, मेरे बारे में जाने देते हैं. Let's get back to the video. So पोर्टफोलियो अगर आप डिज़ाइन या आर्किटेक्चर या किसी भी अदर प्रोग्राम के लिए है तो you need a portfolio for that. Comes the third step. Prepare your required documents. Application form. मैं चुंगांग में, I mean like I'll tell you, इनके यहाँ स्प्रिंग एंड विंटर यानी फॉल में एप्लीकेशंस ओपन होते हैं. हर यूनिवर्सिटी का ऐसी है. सो कीप योर आई. एंड सोल का आई विल से के जैन में ओपन होते हैं एप्लीकेशंस मास्टर्स या किसी भी प्रोग्राम के लिए. सो प्लीज़ कीप चेकिंग द यूनिवर्सिटी वेबसाइट यू वांट अप्लाई फॉर. ओके, हमेशा चेक करते रहो. कुछ भी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी अपडेट है, जस्ट हैव अ लुक. दिन के 5 मिनट ही लगेंगे तुम्हें. जस्ट इफ़ यू रियली वांट टू कम टू कोरिया यू हैव टू पुट दोज 5 minutes देयर. सो जस्ट कीप चेकिंग एवरी डे. ज़्यादा
टाइम नहीं लगता है एप्लीकेशन की डेडलाइन से पहले, नॉट इवन डेडलाइन, आई एम सेइंग कि आने से पहले ही, लाइक ओपन होने से पहले ही कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी. व्हाटएवर यू नीड, जाओ पास्ट एप्लीकेशंस देखो कि उन्होंने क्या मांगा है एंड देन डू योर प्रिपरेशन इन एडवांस. तुम्हारे लिए भी ईजी हो जाता है, उनके लिए भी ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भर लो, उसमें सारे रिक्वायरमेंट्स जो है सब फिल इन कर दो, अपनी डिटेल्स सब सही से. फिर तुम्हारे बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए उन्हें एंड दे लाइक नीड योर डिग्री सर्टिफिकेट प्रॉपर. ओके, उसे भी ट्रांसलेट कराना है और नोटराइज कराना है गाइस, अपोस्टल कराना है उसे, ऐसे ही नहीं दे देना है. एंड दे विल नॉट एक्सेप्ट इट ऐसे ही. I am saying you, I have literally spent so much of money behind those things. You have no idea. My journey has not been easy till now. And every day I am struggling. ऐसा दिखता होगा मेरे इंस्टाग्राम से कि कितने मज़े करी ना लड़की. नहीं गाइस, हर दिन की स्ट्रगल अलग है. एंड आई एम नॉट इवन कंप्लेनिंग अबाउट माई स्ट्रगल्स, बट वही सब चीज़ें मैं आज आपको बता रही हूँ कि आप वो गलतियाँ ना करें. So if you're getting your, I would say, if your documents are in any other language, get them translated in English. Please, सबसे पहले काम यही करना. And then वो English certificate जो है उसको notarize कराना. Please. And I think so your ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो अपोस्टल होते हैं ना, मुझे नहीं पता. मेरी जो डिग्री थी वो इंग्लिश में थी, तो आई डेंट हैड एनी प्रॉब्लम गेटिंग इट अपोस्टल. बट आई गेस तुम्हारे अगर कोई और जैसे बोलते ना लैंग्वेज में है तो तुम्हें वो अपोस्टल करानी पड़ेगी, बिकॉज दैट्स द डॉक्यूमेंट यू गोना सबमिट. सो गेट देम ट्रांसलेटेड, लाइक एवरी डॉक्यूमेंट. योर बर्थ सर्टिफिकेट, योर पासपोर्ट तो इंग्लिश में ही आता है, बट देन योर like academic transcript, your degree certificate, your whatever, like anything, just get them translated in English. That's the first thing you should be doing. वो कर लिया, देन उसके बाद जाके उसे अपोस्टल करा लो. कहाँ से कैसा होता है अपोस्टल, आई ऑल्सो मेक अ वीडियो अबाउट दैट, एंड आई गेस आई डिड मेक अ वीडियो अबाउट इट. मैंने एजेंसी भी लिंक की थी उसमें, बट I guess I don't know कि वो एजेंसी अभी है या नहीं, but I'll still upload the number of the person that I have, like जहाँ से मैं अपोस्टल कराती हूँ. मैं यहाँ थी कोरिया में, तभी मैंने अपोस्टल ऑनलाइन कराया है, एंड दे वर सुपर फास्ट. लाइक वो दिल्ली में ही थे, सो माई अपोस्टल गॉट डन. इट्स नॉट चीप आई वुड से, बट इट्स नॉट इवन दैट एक्सपेंसिव. बट या मेरा एटलीस्ट मेरा काम हो गया था ना, सो आई एम लाइक करा के रखो. गेट इनफ कॉपीज गाइस, गेट इनफ कॉपीज प्लीज़, बिकॉज तुम्हें हर यूनिवर्सिटी में, एंड द थिंग इज कि इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स प्रोग्राम यू ऑल्सो हैव टू सेंड योर डॉक्यूमेंट्स वाया पोस्ट, यानी तुम्हें उन्हें मेल भी करना होगा. सो वो मेल करने के भी अलग पैसे लगते. इट ऑल्सो कॉस्ट यू अराउंड लाइक 2000 INR ऐसा कुछ. तो पहले तो ट्रांसलेट कराओ, नोटराइज कराओ, और जितनी कॉपीज हो सके उतनी करा के रखो एडवांस में, बिकॉज इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर 4 यूनिवर्सिटीज़ यू नीड 4 ओरिजिनल कॉपीज़, बिकॉज उन्हें ओरिजिनल चाहिए होती. एंड मेरा कैसा था कि मैंने रिक्वायरमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ी थी उनकी, तो जहाँ जहाँ मुझे SNU में ओरिजिनल चाहिए था, योनसे में आई थिंक सो अगर मैं एडमिट हो जाती, लाइक इफ़ आई गेट सिलेक्टेड देन आई हैव टू सबमिट माई ओरिजिनल या ऑनलाइन, आई डोंट नो व्हाट इट वाज. देन चुंगांग में तो ऐसा ही था कि इफ़ यू गेट सिलेक्टेड देन यू हैव टू सबमिट द ओरिजिनल कॉपी ऑफ योर डिग्री एंड योर ट्रांसक्रिप्ट. वो हुआ. देन कम्स द अमाउंट. तुम्हें कोरियन लैंग्वेज के लिए तो आई गेस उन्होंने अभी कम कर दिया, बट यू हैड टू शो 8 lakhs फॉर कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम. But now when it comes to masters, you have to show 20 lakhs. Yes. So obviously I'm not rich.
I borrowed money from my relatives, from my friends and everything. And जिन्होंने मेरी मदद की उनका शुक्रिया. You know, warning you ahead कि if you're gonna apply for masters, 20 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए आपके अकाउंट में, ताकि आप दिखा सको कि आप आपका मास्टर्स अफोर्ड कर सकते हो. And I guess that's the same amount that you need for your visa as well. So I would say कि you do not, like, I get it, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं होगा, किसी के पास नहीं होता है in hand, तो just borrow it and keep it with you till like your visa get approved. Please, please. ये हुआ. फिर आपका पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टडी प्लान, जैसे मैंने बताया, वो इम्पोर्टेंट है, वो हो गया है किस, राइट. फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वर्क प्लेस से या टीचर से. यूजुअली 2 मांगते. SNU में 2 मांगा था, मुझे आई गेस 1 ही मांगा था, या SNU में 3 मांगे थे और मेरे चुंगांग में शायद सिर्फ 2 मांगे थे. तो वो फिर पासपोर्ट कॉपी और ID फोटोज़ जो होते हैं वो, ये तुम्हारे बेसिक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के हो गए. And then you just keep, like, after you have submitted all your documents, you just wait for the announcement, keep checking the announcement, and जब announcement आ जाए, अगर तुम select हो गए, then start preparing your bags and start preparing for your visa. वीज़ा भी मैंने खुद से अप्लाई किया था, बिकॉज मैं मुंबई से हूँ, तो मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं आई थी. आई जस्ट हैड, लाइक, मेरे पास सारे सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन था, ट्यूशन रिसिप्ट थी, सब था, तो मैंने जस्ट अप्लाई कर दिया था. बट देन वहाँ पे भी गाइज मैं अटकी थी. मैं बोल रही हूँ ना कि मेरी लाइफ इतनी ईजी नहीं है जितनी आपको दिखती है. जस्ट बिकॉज आई एम पुटिंग आउट देयर इन अ वेरी गुड वे डजंट मीन इट्स वेरी लाइक फन चिलिंग. ऐसी कुछ नहीं है. मैं वहाँ भी अटकी थी वीज़ा में, बिकॉज देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन माई सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन. सो प्लीज़ चेक करना. एंड माई कॉलेज वॉज सो गुड इनफ कि द मोमेंट उन्होंने मुझे वो चीज़ें ना चेंज करके मेल की थी फटाफट, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि मेरा वीज़ा आने वाला था, ऑलमोस्ट आ गया था, बट वो एक डॉक्यूमेंट की मिस्टेक की वजह से मेरा पूरा रुक गया. तो उन्होंने मुझे जल्दी से वो मिस्टेक बताई. मैंने उन्हें कहा कि ये मेरे इसमें चेंज करके दे, और उन्होंने वो चेंज करके मुझे उसी वक्त सेंड किया. एंड देन मेरा वीज़ा वहीं पे ऑन द स्पॉट अप्रूव भी हुआ था. एंड आई जस्ट हैड लाइक फ्यू डेज बिफोर माई फ्लाइट, बिकॉज मैंने फ़्लाइट बुक कर ली थी. आई वॉज सो श्योर देन मुझे वीज़ा मिल जाएगा. आई मीन, क्यों नहीं मिलेगा, मैंने इतना, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, मुझे एडमिशन मिल गया ना, एवरीथिंग. बट स्टिल till the last moment I was, just running. ठीक है, कभी कभार गुस्सा आता है मुझे अपनी ये सब चीज़ों पे, बट उसमें मेरी गलती नहीं थी. और अब मैं उनको भी ब्लेम नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज जो हो गया सो हो गया. आई एम हियर, दैट्स व्हाट मैटर्स फॉर मी. जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, उससे सबक सीखो ज़रूर. So I guess that's it. I'll make a video about personal statement, and I'll also try to upload examples of how they should look like and what they should include, because I just, like, yesterday I got a comment asking me that what to include in your personal statement. So I will make a video about it, and I will definitely upload it. Until next time, bye bye guys. I hope you liked it, and I hope I was able to provide you information and my own tips जो मुझे प्रोवाइड करनी थी. आई गेस मैंने की आपको याद से, बट जस्ट इन केस नहीं की तो आप, यू कैन डेफिनेटली कमेंट बिलो एंड और connect with me on Instagram. I'm much more active there. Okay, and I'm gonna try various things on my YouTube channel, and I hope you support me. Until next time, bye bye.